problems a planner, implementer, evaluator, monitor, controller face during the implementation phase of planning or project whatsoever. The role of research is to identify problems. Basically, whenever we talk about the research, a researcher must have a problem in mind. In order to see the answer of those problems, there are a number of techniques through which we try to address, to search, to seek the answer of those questions or gaps. So researcher, particularly in the context of education, planning and management, researcher try to understand the problem of the existing systems, the demand of the society, the demand of the parents, the demand of the students, the demand of the systems, the demand of the global, right? So in order to address all these problems, a researcher set a specific area. It is not possible for a single researcher to conduct research in a number of areas. At a time, we can conduct a single research in a single area, right? Research provides you information. So these are the main points of today's topics. That is, number one, what is the concept of research, right? Then basic element of the research. What is the need for educational research? Educational research and educational planning. And lastly, different type of research. Right. Research is an application of scientific method to understand the natural or social phenomena, right? Natural as well as social phenomena with the view to find solution of some problems. I have already told you that research is always conducted in order to find answer of some problem being faced, like it is a general understanding that education did not achieve its objective, apparently did not achieve its objective, like our graduates are not knowledgeable, skilled, their skill in reading, writing, understandings are poor. It's a general understanding. The education systems, the prevailing or existing education system failed to improve the behavior, the attitude of our students. With the passage of time, it has been observed that the ethical and social condition of the students has become deteriorated, worse, bad. It's a general understanding. Why this happen? This is a problem. Or we say, what are the problems a student face
while he entered in the school, while he learning Urdu, while he learning mathematics, while he learning English, what type of problems he has faced, whether our curriculum or contents or materials problem exist in the curriculum, contents, materials, or problem exists in the methodology, the methods adopted by our teachers, or the method is in our evaluation system, which is known as examination system. Right? Why not when our graduate, after passing through this education system, when he entered in the job market, why he could not achieve a reasonable job? What is the demand of the employer? How we address the demand of employer? How we create those particular characteristics or qualities in our student, so whenever he qualified, complete, execute education, and with that degree or certificate, whenever he entered in the job markets, the industry, the market welcome him. He become a useful member of the society as well. He has enough knowledge and skill to become a responsible citizen of country. Right? These are number of problems which we, as a teacher or student or parent or a citizen, we all know very well. These are those common problems which we recognize, which we accepted, which we know very well. So in order to seek the answer of all these questions, there is certainly there are some solutions. If we adopt those strategies, those contents, objectives, methodologies, we may be able to achieve these objectives. Right? Objective mean improvement in the quantitative and qualitative aspects of education. Like one of our problem at primary level is dropout, how to control dropout ratio, dropout, repetition, low grade. These are few problems which associated with our primary education system. Why are government institutions, schools did not satisfy the demand of the parents? Why parents prefer private schools? Right? So these all are basically problems. And to seek the solution of these problems, there is one way, that is research. Conduct research, identify gaps, and in order to fill these gaps, the researcher recommend certain steps. He recommend certain remedies, how to address these problems. So all these things come under the umbrella of research, right? The researcher must follow some procedural, some processes through which that is known as scientific method or process. And after going through these processes, he come up with some solutions. And this scientific process is known as research, right? Technically,
there are some specific steps, राइट। और हर रिसर्चर ने ये प्रोसेस और ये स्टेप्स इंश्योर करना है, तब तो वो एक रिसर्चर बन सकता है, राइट, अदरवाइज नहीं। रिसर्चर की डेफिनेशन जो दी मेलन ने, a systematic process of collecting and analyzing information for some purpose। बेसिकली रिसर्च होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से। पहला स्टेप इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो हम कह रहे हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी, टू डिटरमिन द रीजंस ऑफ ड्रॉप आउट रेशियोज एट प्राइमरी लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट नारोवाल या जो भी डिस्ट्रिक्ट का पाकिस्तान का है, ड्रॉप आउट रेशियोज जो प्राइमरी लेवल की है, बॉयज की या गर्ल्स की, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में क्या रीजन है ड्रॉप आउट रेशियोज की प्राइमरी लेवल पर। ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है। कुछ समझ आ रही है? तो इस रिसर्च प्रॉब्लम को, इसका रीजन है ना, आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, एवेल्युएट करना है, कंपाइल करना है। ये मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। या आप कहते हैं जी, डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ M.Ed and B.Ed teachers on the performance of students। तो जो भी आप, लेकिन ये बड़ा जो प्रॉब्लम होगा बड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकली होगा, राइट। आपने किस लेवल पे ये परफॉर्मेंस देखनी है, रिसर्च किस एरिया में करनी है, किस लेवल की करनी है, किस जगह पे करनी है, राइट। और ये आपका रिसर्च, फिर रिसर्च की जो स्टेटमेंट है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर साथ साथ डिस्कस करें। तो अभी तक जो हम बातें की, मोती आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये सबसे मुश्किल काम होता है रिसर्च में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये तो कैसे नहीं होते, स्लीपलेस नाइट्स गुजर जाती हैं रिसर्चर की कि वो रिसर्च प्रॉब्लम कैसे तलाश करे। मेरी आवाज सबको आ रही है, समझ रहे हो कि नहीं? देखो, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं सारी रात भी इस पे बोल सकता हूँ, सारी रात कहोगे मैं रिसर्च में बताता रहूँ, लेकिन इतना बताना है जितना तुम समझ सको रिसर्च प्रॉब्लम। बड़ा मैं भी आपसे कहूँ जी रिसर्च के लिए, देखें, चले आपकी आसानी के लिए बताते हैं। आपने देखा हमारी कमर्शियल जो है ना, कमर्शियल में जो एडवर्टाइजमेंट आती है टेलीविजन पर, इसका ट्रेंड चेंज हो गया। अब हम पहले हम कहते थे सफाई रखें, साफ सुथरा रहे। अब हमने ट्रेंड चेंज कर दिया, हम कहते हैं दांत तो अच्छे होते हैं, राइट। सुन रहे हैं ना हम रोज, हर रोज दांत तो अच्छे होते हैं, सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करें, बोनस इस्तेमाल करें, बोनस ट्राई स्टार, ये वो, राइट, कपड़ों को चमकदार रखे। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, जो जाके कंज्यूमर को, कस्टमर को पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, यानी एक कपड़े को आप किस तरह साफ देखना चाहते हैं। लॉन्ड्री वालों के पास जाते हैं, घरेलू खवातीन से पूछते हैं कि आप क्या चाहती हैं, कहते जी कपड़े में चमक हो, कपड़े के धागे ना खराब करें, हमारे लिए इजी हो, हमारे हाथ ना खराब हो, खुशबू आए, जिस साबुन से बदबू आती है। देखिए, ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने उनको बताए। सस्ता हो जी, कुछ कस्टमर कहते हैं पैसे की परवाह नहीं है, चीज अच्छी होनी चाहिए, कपड़े की लाइफ ज्यादा करें। आप समझते हैं ना? तो हम, ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो डिमांड्स हैं
जो कस्टमर उनको देता है। इसी तरह एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर क्या डिमांड करते हैं, हम क्या डिमांड कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉब्लम होता है। मैं प्रॉब्लम पर इसलिए आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये सबसे टफ काम रिसर्च में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है। अब फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस, अजम्पशन एंड इंटेलिजेंस केस। हाइपोथेसिस होता है कि आप कहें कि जनाब एमए टीचर जो है वो बच्चों को अच्छा पढ़ाता है, एक हाइपोथेसिस ये है। एमए का टीचर बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाता, दूसरा हाइपोथेसिस ये है। ये आपके हाइपोथेसिस है, गेस है। अब इस हाइपोथेसिस को सच या झूठ साबित करने के लिए आपको एक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। हाइपोथेसिस होता है इंटेलिजेंट गेस लगाना, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जनाब जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम से लायक होते हैं। फिर हाइपोथेसिस है उर्दू मीडियम के स्कूल के बच्चे इंग्लिश मीडियम वालों से उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हाइपोथेसिस है। मेरा गेस है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। assumptions हम अपनी तरफ से बनाते हैं, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस assumption को थ्रू प्रोसेस जो है ना, जब तक हम उसके से गुजरेंगे नहीं, हम ये नहीं बता सकते उस वक्त तक ये एक गेस है। तो रिसर्च की जुबान में इस गेस को, इस तुक्के को, ये जो आपकी अपनी इंटेलिजेंट वो है ना, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, राइट। उसके बाद एक स्टेज आती है डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट से मुराद वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हम आमतौर पर जिसकी मीनिंग लेते हैं, यानी ये पेचकस प्लास नहीं है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, रिसर्च की वजह से जर्नल रिसर्च को हम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट। क्वांटिटेटिव जैसे इसके नाम से जाहिर है, जिसमें फिगर्स इन्वॉल्व, राइट। फॉर एग्जांपल कहेंगे जनाब आपकी उम्र कितनी है, हम बता सकते हैं। आपका कद कितना है, ये भी हम बता सकते हैं। आपके दांत कितने हैं, यह भी हम बता सकते हैं। लेकिन आप किस चीज को पसंद करते हैं, ये हम नंबर में नहीं बता सकते। आपकी आदत हम नंबर में नहीं बता सकते, राइट। तो कुछ चीजें आप क्वांटिटेटिवली डिटरमिन करते हैं, कुछ क्वालिटेटिव डिटरमिन करते हैं। तो रिसर्च दो बड़े हिस्सों में तकसीम होती है। क्वांटिटेटिव, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके से गुजर कर, जिसमें आपकी प्रॉब्लम है, आपके हाइपोथेसिस हैं और ये जो आगे स्टेप्स हैं। क्वालिटेटिव भी इसी प्रोसेस से गुजरता है, उसमें फिगर्स नहीं होती, वर्ड्स होते हैं, फिगर रिप्लेस विद वर्ड, ठीक है। आप कहेंगे जी मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। कितना प्यार करते हो, बहुत की तो बहुत से क्या, हाउ वी डिफाइन बहुत, 50%, 100%, 30, 10, हम तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपकी जो रिसर्च की टाइप और नेचर है वो डिपेंड करती है डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हाइपोथेसिस आपने जनरेट किया है, इसका जवाब देने के लिए आपके पास एक साइंटिफिक टूल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। इसकी बड़ी बड़ी टाइप्स में फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आती हैं। इस टूल में क्वेश्चनियर है, सवालनामा, ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्व करें। जैसे आप क्लास में बैठ के देखिए कि टीचर कैसे पढ़ाता है, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, खामोश ऑब्जर्व करें। आप इंटरव्यू करें कुछ बच्चों से और टीचर से। आप कुछ बच्चों का ग्रुप बनाएं और उसमें ये प्रॉब्लम दें और वो डिस्कस करेंगे, आप खामोशी से सुनेंगे। यू गॉट माय पॉइंट। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें। जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है वो क्वेश्चनियर्स है, इंटरव्यू है, चेकलिस्ट है,
और आपकी ऑब्जर्वेशन है, राइट। दी अच्छा, अब इस क्वेश्चन ये की आगे बहुत सी टाइप्स हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, राइट। मिक्स भी होता है, क्लोज एंडेड भी होते हैं, ओपन एंडेड भी होते हैं। और ओपन और क्लोज में क्या फर्क है इंस्ट्रूमेंट में? फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए आपका मजहब क्या है, आपके खाने बनोगे इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, राइट। तो जब आपको स्पेसिफाइड कर दिया जाए, यानी आपने इनमें से किसी एक को टिक करना है या अदर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी आपने जो सबक पढ़ा, या फॉर एग्जाम्पल कहेंगे जी आपने जो इस फ्लेवर का फल खाया, आइसक्रीम खाई, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो एवरीवन इज ओपन। कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा बुरा है, कोई कहेगा इसका जायका अच्छा है, कोई कहेगा ठंडी है, कोई कहेगा गर्म है, ठीक है। हर बंदा अपना अपना ओपिनियन देने ओपन होगा। तो कहीं हम पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ना, जिसको टेक्निकली रिसर्च की जुबान में कहते हैं पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से सैंपल ड्राइव होता है। आप अपनी पॉपुलेशन से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिसर्च, राइट। इसकी फिर पूरी बहस है, पूरी दुनिया है कि आप रिसर्च कैसे डेवलप करेंगे। और रिसर्च में सबसे मुश्किल तरीन काम डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं, इसकी चेक करते हैं एक्यूरेसी, राइट, एथेंटिसिटी। उसके लिए मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है, मोबाइल ने बिल्कुल ठीक करो, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, राइट। उसके लिए मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं। तो ये अपने अंदर पूरा एक सब्जेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ instrument. Whenever you succeed to develop an instrument, the next phase is collection of data, right? Data collect करेंगे। अब जो आपने पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल आप कहें जी हमने क्लास 10 के इंग्लिश स्टूडेंट से पूछना है, तो फिर आप क्लास 10 के इंग्लिश स्टूडेंट से ही डेटा कलेक्ट करेंगे। क्लास 9, 8 में या 11, 12 में नहीं जाना, और उन लोगों से जाना जो इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और एनालिसिस ऑफ डाटा। आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसको एक प्रॉपर से ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इस डाटा का एनालिसिस करते हैं थ्रू डिफरेंट टी टेस्ट, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है SPSS, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं उस डाटा के ऊपर जो आपने कलेक्ट किया होता है। वो डाटा के जो टेस्ट का रिजल्ट जनरेट होता है, उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और उस एनालिसिस की बेस पर हम किसी भी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ये जो डाटा था हमने 500 लोगों से कलेक्ट किया, और 500 में से हमें 450 लोगों ने डाटा दिया। 450 में से 350 ये कहते हैं, 50 ये कहते हैं, 30 ये कहते हैं, 20 ये कहते हैं। तो इन तमाम को डाटा जब आपने किया, डाटा कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस डिपेंड अपॉन द रिसर्च क्वेश्चंस। हाइपोथेसिस, आपका हाइपोथेसिस क्या कहता है, राइट। आप कहते हैं कि नहीं, अगर आपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है उर्दू और इंग्लिश मीडियम स्कूलों टीचर की, तो फिर आप टी टेस्ट लगाएंगे, काई स्केयर लगाएंगे, कि जिसने स्टैट पढ़ा ये बेहतर बताएगा। अगर आपने इफेक्ट देखने हैं तो फिर क्या लगाएंगे, अनोवा लगाइए, ठीक है। और उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस देखेंगे, ऐसे ही है। तो दीज डिफरेंट टाइप टेस्ट जो एनालिसिस है, ये डिपेंड करता है द नेचर ऑफ प्रॉब्लम एंड योर हाइपोथेसिस और योर रिसर्च क्वेश्चन। आपका रिसर्च क्वेश्चन किस चीज का जवाब ढूंढ रहा है,
अकॉर्डिंगली आप स्टैटिस्टिक का वो टेक्निक लगाएंगे, राइट। जनरली हम जो देखते हैं कि जनाब इसकी मीन्स क्या है, मोड क्या है इसका, राइट। तो ये जनरली आपको बताता है कि डेटा क्या क्या है, राइट। जो आपके जवाब आए हैं उसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका जो डेटा आया वो उसके जो जवाबात थे वो बेल शेप में जिसे आप करते हैं, राइट। तो ये तमाम चीजें, फिर आपने कितना परसेंट उसका रखा हुआ है, फर्स्ट एरर, सेकंड एरर, ये तमाम चीजें आपकी डाटा एनालिसिस में आती हैं। दूसरा, ये एनालिसिस डिपेंड करता है द नेचर ऑफ रिसर्च। अगर आप फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन का अप्लाई करते हैं 100 जानवरों पर और उसमें उस दवाई से किसी एक की भी डेथ हो गई तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। लेकिन अगर आप यही कोई कंज्यूमर या अपनी एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं तो अगर 2-4 ने दिया भी तो डजंट मैटर, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिसर्च। अगर 1000 में से एक डाटा भी, एक की भी किसी की डेथ हो गई तो ये रिसर्च नाकाबिल कबूल होगी मेडिकल में, राइट। अच्छा, रिग्रेशन एनालिसिस को छोड़ दो, ये मैंने वैसे बताया था, ये जब तुम करोगे तुम्हें पता चल जाएगा रिग्रेशन एनालिसिस क्या कहते हो, टी टेस्ट क्या होता है और काई स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। ये बात की बातें हैं भी, सिर्फ इसकी बेसिक समझ लो। देन वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन हाइपोथेसिस बाय टेस्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो हमने हाइपोथेसिस जनरेट किए और हमने एनालिसिस डाटा के ऊपर कंक्लूजन बताए, तो फिर हम कहते हैं कि यस, जो हमने कहा था कि जो लोग एमएड हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो उनके स्टूडेंट की अचीवमेंट लेवल हमने चेक किया उस सब्जेक्ट में, तो जो वही सब्जेक्ट जो एमएड पढ़ा रहा था और वही सब्जेक्ट जो बीएड पढ़ा रहा था, उन स्टूडेंट्स के ऊपर एमएड टीचर रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो इट्स मीन कि क्वालिफिकेशन इफेक्ट करती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, राइट। एक हमारा हाइपोथेसिस ये था। एक हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया कि नहीं जी, बीएड और एमएड से कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर आर सम अदर फैक्टर्स। वो आप तलाश करें कौन से फैक्टर हैं जो परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट की, राइट। तो कहीं आप वेरीफाई करेंगे, कहीं आप रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। नल हाइपोथेसिस, बिल्कुल नल या अल्टरनेट, एच नॉट H1, ठीक है। तो ये अच्छा मोहसिन, अगर तुमने स्टैट पढ़ी है तो थोड़ी देर ठहर जा, लोगों को कंफ्यूज ना कर। वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस बाय टेस्ट ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो ये सिंपली आप रिसर्च जिन्होंने पहली दफा पढ़ी वो समझ लें, स्टैट इसका एक कंपोनेंट है जो एनालिसिस में काम आता है, ठीक है। और ये स्टैटिस्टिक जो होती है ये क्वांटिटेटिव में आती है, क्वालिटेटिव में नहीं आती। क्वालिटेटिव की कोई और टेक्निक्स हैं। नीड फॉर एजुकेशनल रिसर्च, क्यों जरूरत पड़ी हमें एजुकेशन लॉजिकल चीज। आज ये जो मैं और आप LMS कर रहे हैं, इसके आखिर में एक रिसर्च होनी चाहिए और आप लोगों से पूछें whether you are satisfied this online classes or you prefer face-to-face classes, whether you are satisfied the teaching standard of the teachers who taught you online, or you preference the teacher who had been taught you in regional offices। एक रिसर्च है ना कि ये जो हमने नई इनोवेशन लाए हैं जिसके थ्रू आप कहीं दूर दराज बैठे हैं, हम सब फैले हुए हैं, लेकिन इस 1 घंटे के लिए हम सब इस नेट के थ्रू कनेक्ट हैं, राइट। तो क्या इस टेक्नोलॉजी का आपकी परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन लेवल पर कोई फर्क पड़ा, राइट। न्यू डिमांड्स ऑफ एजुकेशन, आप क्या डिमांड करते हैं
आप कहेंगे जी वॉइस का मसला है, टेक्नो, ठीक है, कनेक्ट नहीं होते, टीचर की आवाज नहीं आती, टीचर प्रॉपर पढ़ाता नहीं है जी, हमें बात समझ नहीं आती, एक पीपीटी के साथ आ जाता है, प्रेजेंटेशन के साथ आ जाता है, हम उसको नहीं समझते। अगर हम सामने हो तो वो हमारी आवाज सुनेगा, ठीक है, वो हमारी आवाज सुनेगा, हम उससे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ तो हम चैट करते हैं, वो अपना पढ़ा रहा होता है, हमारा आई कांटेक्ट नहीं है उसके साथ, हमने कभी उसको देखा नहीं। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो नहीं पूछते, वो पढ़ा रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ इश्यूज हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कैसे एड्रेस करें, आप कहिए अगर छोटी सी उसकी तस्वीर भी आ रही है और हमारी भी जा रही हो, इस चैट की जगह जी कोई और आप टेक्नोलॉजी दें जो आई कांटेक्ट भी हो जाए, हमें जी इसका ईमेल एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर भी सामने हो ताकि हम फौरन उसके साथ कनेक्ट हों, राइट। आपकी डिमांड है ना, आप कहते हैं कि जनाब ये जो हमें बताते हैं चाहिए ये कि ऑन ये जो है ना अपलोड, किताब बुक को अपलोड किया करे, वहां से पढ़ाया करे, मुख्तलिफ आपके क्वेश्चन हो सकते हैं ना, तो हम इन सब को एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। वेदर यू प्रेफर दिस पीपीटी या प्रेजेंटेशन मोड और यू प्रेफर बुक। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिंध से होंगे, जो केपी से होंगे, वो कहेंगे हमें इस बंदे की एसेंस समझ नहीं आती, ये तो उर्दू स्पीकर है, अंग्रेजी बहुत बोलता है सर, हम शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकते, अंग्रेजी में बोलते रहता है, हम सुनते रहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। वैसे बहुत से बच्चों की अंग्रेजी अच्छी होगी, बहुत की अच्छी नहीं होगी, ठीक है, राइट। तो आपकी डिमांड मुख्तलिफ है, फिर आपसे पूछा जाएगी कि अब आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, हाउ यू शुड इम्प्रूव द सिस्टम। आपके जी टाइम का बड़ा इशू है, एक घंटे में अगर उस घंटे के अंदर एंटर ना हुए तो हमसे एक क्लास मिस हो जाए, तो कोई ऐसा ऑप्शन रखिए कि अगर हम अटेंड ना भी कर सके तो बाद में इस बंदे के लेक्चर पूरा सुन लें, ये ऑप्शन हो सकता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन, राइट, इन मल्टी सब्जेक्ट्स टू लर्निंग और इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, नॉलेज एक्सप्लोजन। रिसर्च इसलिए की जाती है, ये हम करना चाहते हैं कि अब जो दौर है वो नॉलेज एक्सप्लेन का दौर है, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, कम टाइम में हमने बहुत कुछ पढ़ना है, इस 2 साल 4 साल को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, नॉलेज बड़ा तेजी से दुनिया में आ रहा है, तो क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जाए इस थोड़े से वक्त में हम बच्चे को बहुत कुछ पढ़ा सकते, बच्चे का जो बच्चे का उसको कम करें, इतना बड़ा बैग लेके जाता है, उसकी तो कुब निकल आई है जी, हड्डियां उसकी दर्द करती हैं, छोटे बच्चे के बैग का वजन 15 किलो और वो अगर आधा किलोमीटर चलेगा तो वो तो फिजिकली वीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए इन कॉपी और किताबों का बोझ कम करें बच्चों पर, राइट। हम दूसरे कहते हैं जनाब, हमें कहता है मैं पढ़ रहा हूँ लैपटॉप पर, बीच में गेमें खेल होते हैं, हमें क्या पता। अनपढ़ लोग कहते हैं जी हमें क्या पता ये इस मोबाइल में क्या देख रहा है, पहले तो मेरे सामने किताब लेके बैठ जाता था, मुझे क्या पता क्या करता है। यू गॉट माई पॉइंट, नंबर ऑफ डायमेंशन, मल्टी डायमेंशंस हैं, राइट। अब आपने इसमें से निकालना है इन सबको इंटीग्रेट करके कि मैं कैसे एजुकेशन को इम्पार्ट करूंगा और प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करूंगा, राइट। एजुकेशन रिसर्च की जाती है स्केर्स रिसोर्सेज और ऑप्टिमम डेवलपमेंट के लिए। अजान हो रही है बेटा, एक मिनट खामोश होते हैं फिर मैं पढ़ाते हैं।
देखिए, दुनिया की तमाम तरक्की रिसर्च से आई है। आज से 8-10 साल पहले आपके पास वो बटनों वाले मोबाइल थे। अब मेरा ख्याल वो शायद नापायद हो गए हैं। अब हम उसको देखते हैं तो बड़ी अजीब नजर से देखते हैं कि एक ही चीज है, ये हले तक तेरे कोल है, राइट? क्यों? रिसर्च ने बताया कि जी हमने कंज्यूमर से पूछा व्हाट इज योर नीड। उसने कहा ऐसा मोबाइल हो बस मैं उसको सिर्फ टच करूं तो मेरे सारे काम हो जाए। टच मोबाइल आ गया, वॉइस मोबाइल आ गया, ट्रांसलेटर्स आ गए, ईच एंड एवरीथिंग ऑन नेट अवेलेबल हो गया। गूगल ने दुनिया जहां में रिसर्च करा करा के कि मेरे कस्टमर्स की नीड क्या है, राइट? नॉलेज की नीड क्या है, एजुकेशन की नीड क्या है, एंटरटेनमेंट की नीड क्या है। ये जो फेसबुक है, ये जो फेसबुक का मालिक है, ये इसका प्रोजेक्ट था। ये ठीक है, ये इसका प्रोजेक्ट है, एमफिल का भी है उसका, जो फेसबुक उसने बनाई, ये इसका प्रोजेक्ट था बेसिकली। देन रिसर्च इज नीडेड टू कीप आउट फिक्स्ड ट्रैक। रिसर्च हमें इसलिए जरूरत है कि हम एग्जैक्ट ट्रैक में जाएं, डी ट्रैक ना हो जाए। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना सारे? Okay, good. Educational research and education planning. Guiding education planning. Research आपको गाइड करती है फ्यूचर प्लान पर, राइट? फ्यूचर प्लान्स के ऊपर आप रिसर्च की आउट जो कमिंग्स है ना, वो गाइड करती हैं, ठीक है? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो मेरी रिसर्च थी, मैंने जो रिसर्च की पीएचडी पर, वो रिसर्च थी द इफेक्ट ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी ऑन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। इफेक्ट ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी ऑन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। अब इस वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में हम सब की एज डिफरेंट है, हम में से कोई मेल है, कोई फीमेल है, जेंडर डिफरेंट है, हम सब की क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है, ठीक है? ये तो वो हो गई। अब इसमें दो बातें हैं, एक जो नजर आती है, हमें सबको नजर, आपको देख के, मुझे देख के, और मैं आपको देखूं तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये लड़की है, अच्छा इसकी 20 साल उम्र होगी, 20-21 साल, ठीक है? अच्छा ये शक्ल से पंजाबी लगती है, ये सिंधी लगती है, जब बोलती है तो पता चलता है कि सिंध से है, पठान है। ये वो चीजें हैं जो हमें बज़ाहिर नजर आ जाती हैं, एज, जेंडर, एथनिसिटी, राइट, हेयर, ये तमाम कुछ हमारे चीजें जो नजर नहीं आती। देखिए, जब तक आपको मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने पीएचडी की, तो आपको क्या पता चलेगा? जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, तो आपको क्या पता चलेगा? किस फील्ड में है, आपको क्या पता चलेगा? राइट? ये आपको एग्जांपल दे। अब जब हमने रिसर्च की, हमने जाके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछा, बताएं जनाब मेल अच्छा काम करते हैं कि फीमेल? ये एक इंडिकेटर है, बहुत से इंडिकेटर्स में एक छोटा सा इंडिकेटर। और हैरानगी है, रिसर्च की आउटकम्स जब आई क्वांटिटेटिव लेवल पर, तो पता चला हाईली क्वालिफाइड लोगों की परफॉर्मेंस लो है, और जो नॉर्मल लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। हैरानगी की बात थी यार। मैंने तो सारी जिंदगी यही देखा कि जब आपकी क्वालिफिकेशन बेहतर हो जाए, ठीक है, ये क्या हो गया? पता चला जी फीमेल की तो परफॉर्मेंस ही बहुत लो है। जो लोगों में क्वांटिटेटिव डाटा दिया, तो रिसर्च की फाइंडिंग के बाद तो मैं परेशान था, ये क्या हो गया यार, ये तो गलत होगी सारी रिसर्च, ठीक है? रिसर्च 2 फेजेस में थी मेरी। पहली फेज था क्वांटिटेटिव और सेकंड फेज था क्वालिटेटिव। फिर मैंने जाके इंटरव्यूज किए। मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना, आपको पता चले गाइडिंग से क्या मुराद है। जब मैं हेड्स के पास गया, मैंने इनसे पूछा कि सर हायर क्वालिफाइड आदमी बेहतर काम करता है कि जो नॉर्मल है? जो नॉर्मल, उनके क्यों सर, ये मैन? उसने कहा ये हायर जो
क्वालिफाइड बंदा ही शायद दूसरी जॉब तलाश करता है, वो अनसेटिस्फाई होता है, मुझे उसकी तालीम से क्या लेना देना, वो खुशी नहीं है इस जॉब के ऊपर, राइट। तो फिर हमें पता चला अच्छा ये फाइंडिंग तो हमारी ठीक है, राइट। फिर जब हम गए उन हेड्स के पास जिनके पास खवातीन काम करती थी, सर ये मेल बेहतर काम करते हैं या फीमेल, उसने कहा मेल बेहतर काम करते हैं, कि क्यों सर फीमेल क्यों नहीं करती, तो फीमेल के अपने बहुत मसले हैं यार, कोई सास से लड़के आती है, कोई शोर से लड़के आती है, ठीक है, यहाँ पर मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, मुझे वो हरासमेंट की धमकियां देती है, मैं तो तंग हूँ इनसे कि आपस के झगड़े नहीं खत्म होते, मर्द को तो मैं डांट सकता हूँ, औरत को मैं डांट भी नहीं सकता, ये आप मेरी बात सुन ले, ये आपको अब ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि जब भी फ्यूचर में आप रिक्रूटमेंट करेंगे तो ओवर क्वालिफाइड बंदा नहीं लेंगे, बिकॉज ही or she will not be satisfied with his position due to his qualification. Got my point? ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन में, ठीक है। तो अब आप बताएं, ये वो हकीकत है ना, अब इसमें फीमेल मेल का झगड़ा नहीं, मैं तो आपको जनरल बात बता रहा हूँ ना, ठीक है। जब फीमेल से पूछा तो उनका जवाब भी यही था कि फीमेल अच्छा काम नहीं करते, फीमेल एचओडी फीमेल के बारे में ये देती हैं अपना इनपुट कि नहीं बातें ज्यादा करती हैं, एक दूसरे को सारा दिन लेग पुलिंग होती है और ये होता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अब इससे दो चार बातें निकलती हैं। एक तो हमें इनका वर्किंग स्टाइल जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस है। फीमेल बेस्ट इस्तेमाल हो सकती हैं एज अ रिसेप्शनिस्ट, क्योंकि जो बंदा बाहर से आता है वो फीमेल को देख के बदतमीजी करने के चांसेस कम होते हैं। फीमेल बड़ा अच्छा काम कर सकती है अकाउंटेंट के तौर पर, क्योंकि टेबल वर्क है, उसका लोगों से मिलना जुलना कम होगा, ज्यादा होता है। तो ये आपको रिसर्च बताती है क्यों ये काम हम करने जा रहे हैं, राइट। पता चला कि जनाब जिन लोगों का एज ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा लॉयल ऑनेस्ट होते हैं बनिस्बत यंगस्टर के, इसलिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी एक जो कनेक्टिविटी होती है, एक लव होता है, प्यार होता है, लॉयल्टी होती है और ऑनेस्टी होती है, ठीक है। तो ये लेकिन अब मुख्तलिफ चीजें आपको पता चलती हैं मुख्तलिफ तरीके से, राइट। फिर रिलेबल फैक्चुअल नॉलेज आपके पास आता है। हम जब रिसर्च की बात करते हैं, जब आप रिसर्चर बनते हैं तो एक चीज याद रखना, ये अपनी एनक उतार देना कि मैं मर्द हूं, मैं औरत हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं ये हूं, मैं नहीं। यू आर रिसर्चर, रिसर्चर का काम होता है फैक्ट्स और फिगर को सामने लाना, अपनी बायसनेस नहीं लानी बीच में, वन हमारी रिसर्च जीरो हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा। देन रिसर्च एक आपको रेमेडीज देती है, देखो हमें इलाज करना है, हमने बीमारी का इलाज करना है, प्रॉब्लम्स का, डिफेंड नहीं करना उसको। रिसर्च आपको इलाज बताती है, सोशल रियलिटीज बताती है। आपने कभी देखा है कि सच क्या होता है? देखो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सच क्या है? व्हाट इज रियलिटी? सच क्या है? मैं नमाज पढ़ता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, यहीं से दोबारा शुरू करेंगे कि सच क्या होता है और आपने मुझे इसका जवाब देना है, राइट। Conformity of facts and reality, the facts which exist कह रहे हैं जी, truth is objective of knowledge, ये यू आर राइट, आई एग्री। अच्छा जनाब आप किस चीज पे एग्री हुए सारे? ट्रुथ क्या होती है? देखो डियर्स,
सोशल रियलिटी को समझो, मैं रियलिटी, सोशल रियलिटी को, जो लोग कहते हैं ना वो सच होता है। द वॉइस ऑफ द पीपल इज ट्रुथ, राइट? वॉइस ऑफ द पीपल इज ट्रुथ। लोग कहते हैं कि जनाब क्वालिटी नहीं है, तो सच तो ये है। आपका डाटा कहता है क्वालिटी है, आपके सारे इंडिकेटर कह रहे हैं कि आपके सारे इंडिकेटर कह रहे हैं कि जी मुल्क में महंगाई नहीं है, लेकिन आवाम से पूछो कहते हैं महंगाई है, तो किसकी बात मानोगे? मुल्क में गुर्बत है, मुल्क में लाकानूनियत है, किसकी बात मानोगे? गवर्नमेंट कहती है कोई नहीं है। The voice of the peoples are reality। कर दिया है चंगी तरह की तई। You got my point? देखो प्लानर रिसर्च के बाद ही मानेगा, लेकिन प्लानर की ड्यूटी तो यही है ना कि उसने प्लानिंग लोगों के लिए करनी है, लोगों की डिजायर को भी तो देखेगा ना। आप समझ गए बात मेरी? क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए ना, इस क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हम क्वालिटेटिव की तरफ जाते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा कहता है कि जनाब, क्वांटिटेटिव डाटा कहता है कि जनाब हाईली क्वालिफाइड लोग निकम्मे होते हैं, काम की परफॉर्मेंस उनकी ऐसे नहीं होती। अब चले गए किसकी? क्यों? फिर यहाँ रखो ताकि सुबह वो आए तो उनको पता चलेगा। यहाँ एक कप खाना जितनी अकल की होती है रख सामने, इधर सामने रख, चलो जो सुबह आएगा तो चल जाए। ठीक है जी, अब आपको समझ आई सोशल रियलिटी। फिर आपकी रिसर्च एप्लीकेबिलिटी पर होगी, इंक्रीज एफिशिएंसी है, ब्रिंग कॉन्फिडेंस है, adoption of new methods, sense of awareness, promote education reforms. These are few requirements why education research is important in education planning. हम आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है, टॉपिक ये बहुत बड़ा है इसलिए दो होने चाहिए थे। Education planners are interested in any type of intellectual fact finding, analysis or inquiry which can be broaden and deepen their understanding of education planning and make it more effective. Type of research, purposes or uses, right? This is basic research, applied research, evaluation research, action research। इस पर हम बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है? एविडेंसेस में दो मैंने आपको बता दिया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक टाइप्स हम आगे इसको देखते हैं। By methods, historical, descriptive और experimental। ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। Descriptive research क्या है? It is concerned with the condition or relationship that exists, practices prevail, benefit, point of view or attitude that and processes that are going on, effect that are being felt or trends that are developing। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं जब आप कोई चीज से रिलेशनशिप देखें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब आप फीसिस कम करते हैं तो एनरोलमेंट ज्यादा होती है, द इफेक्ट ऑफ फीसिस ऑन एनरोलमेंट। या जब आप देखते हैं कि जनाब द इफेक्ट ऑफ curriculum change on student performance, the effect of teacher methodology on employees performance, right? Relationship between the income level of the parents and student income, the student performance। ये तमाम relationship practices
हम ये सारी चीजें जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पढ़ते हैं, डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्रिप्ट सर्वे मेथड, experimental research. An experiment is a scientific device for obtaining an answer to the question. If this is done under careful control condition, what will be happen? Experimental research basically ये साइंस में होती है। जैसे आप कहेंगे जनाब आपने कोई मेडिसिन इजाद की है, तो वो फिर आप बाकी तमाम चीजों को कंट्रोल करके सिर्फ उस मेडिसिन का इफेक्ट देखते हैं जानवरों पर या इंसानों पर कि क्या इफेक्ट आया उसके ऊपर, उसने इस बीमारी के लिए क्या काम किया। जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना की जो वैक्सीन बन रही हैं ये इंतहाई कंट्रोल इन्वायरमेंट में लेबोरेटरीज के अंदर आ रही है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सोसाइटी में होती है, उसमें आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। साइंटिफिक में जब आप रिसर्च करते हैं तो आपके पास कंट्रोल होता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, या एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ उस दवाई का जानवरों पर या इंसानों पर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोशल डिस्क्रिप्टिव में या एजुकेशन में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनाब हमने बच्चों की ड्यूरेशन जो है, लेक्चर की ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, 40 मिनट से हमने 55 मिनट किया, 1 घंटा कर दिया। हम इसका इफेक्ट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर उसमें आप 2 ग्रुप बनाएंगे, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक ग्रुप को आप 40 मिनट पढ़ाएंगे, एक को 60 मिनट पढ़ाएंगे। 1 महीने बाद उन दोनों को आप जो एवेल्युएट करेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो फिर पता चलेगी कि जिसके ऊपर आपने 1 घंटे का ट्रीटमेंट दिया था उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई कि नहीं हुई। अगर हुई तो इसका मतलब है टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने से बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। या आप कहेंगे जनाब हमने बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया, बजाय कि हम चाक वाक से पढ़ाएं, टीचिंग से पढ़ाएं, हमने लर्निंग बाय डूइंग का मेथड अपनाया। एक ग्रुप को हमने लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाया, दूसरे को ट्रेडिशनल से पढ़ाया, ठीक है। तो फिर देखते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट किए। An experiment is a situation in which relationship between cause and effect is determined. तो हम देखते हैं कि ये जो हमने cause यानी टाइम को बढ़ाया, ये cause है, इसका इफेक्ट क्या आया, राइट। इसी तरह जो मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी कि हम ये देखते हैं कि जनाब लर्निंग बाय डूइंग जो है एक cause है, इसका इफेक्ट क्या होगा डिटरमिन करना है। गॉट माय पॉइंट? बात समझ रहे हो ना? ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? हिस्टोरिकल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली एग्जामिनिंग पास्ट इवेंट टू गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट इज हैपन इन द पास्ट। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप हिस्ट्रीज को देखते हैं। आपसे कहा जाता है कि जनाब ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी ये जो पत्थर है या ये जो पीस ऑफ वुड मिला है ये इतने 100 साल पहले है, इस पर जो कुछ लिखा हुआ है, या हम देखते हैं मुख्तलिफ साइन बने होते हैं, तो हम हिस्टोरिकली जाके देखते हैं। उसमें कुछ साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं। कार्बन की जो होती है वो बता देती है कि एक्चुअली ये इतने साल पुराना है कि नहीं। हिस्टोरिकल रिसर्च में फॉर एग्जाम्पल कहा जाएगा जी कायद आज़म ने ये कहा था, सर सईद अहमद खान ने ये कहा था। तो ये जो उसका जो उनके वर्ड्स होते हैं ये जाके उस कॉन्टेक्स्ट में देखे जाते हैं कि ये कब कहे थे, क्या उसकी कंडीशन थी इससे पहले और इससे। जो आज़म के, अल्लामा इकबाल के या ससीम खान की कॉल जो थी वो इनसे कंट्रडिक्ट तो नहीं करते। क्या ये एक्यूरेट डाटा है? कि ये एक्यूरेट डाटा नहीं है। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्ट्री को हम उसमें देखते हैं। टाइप ऑफ रिसर्च एक फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च होती है जिसमें हम फैक्ट्स मालूम करते हैं क्या है, बस रिकमेंडेशन नहीं देते। एक कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च होती है, डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च होती है और एक्शन रिसर्च होती है। एक्शन रिसर्च फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपके बच्चे लेट क्यों आते हैं। छोटी सी रिसर्च आप अपने क्लास में की, पता चला कि आपने टाइमिंग बहुत अर्ली रखी है, बच्चे जो हैं वो दूर से आते हैं। एक्शन रिसर्च फौरन उसका दिया कि जी स्कूल 8 की बजाय आप 9 बजे खुलेगा। या गर्मियों में बच्चे इसलिए कम आते हैं, गर्मी होती है तो
तो आप स्कूल को 8 की जगह 6 बजे खोलना, सुबह सूरज 4 बजे निकलता है। समझ गया? एक्शन रिसर्च एक्शन ओरिएंटेड होती है। फैक्ट फाइंडिंग, द गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ द एजुकेशनल डाटा। फैक्ट को हमने डिटरमिन करना है, to know what the current position is with regard to particular education planning problem. It's quite basic in its purpose, does not cause a given problem, not for appraisal and alternate. Fact only determine the factual situation. Special data being studied for first time, non-formal education, special inventories for education project, institution innovation. So heterogeneous are different. That a sample survey would never give representative results. Fact finding, sample survey. Its phenomena in the question is too large to be studied in totally. Homogeneous enough, why survey less costly, give results faster. Fact finding, जब आप sample survey करते हैं तो ये इसलिए किया जाता है कि ये कॉस्टली नहीं होता, तेज से रिजल्ट देता है आपको। अदरवाइज रिसर्च इज अ कॉस्टली एक्टिविटी, पैसा बहुत खर्च होता है इसमें। कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च क्या होती है? विच सीक टू एक्सप्लेन द एजुकेशन फिनोमेना rather than just starting the record them, right? फिनोमेना को की एक्सप्लेनेशन देखते हैं आप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन ड्रॉप आउट रिजल्ट फॉर लॉन्ग टर्म्स, ये मैंने आपको भी एग्जाम्पल में बता भी दिया। decision oriented research will as a rule by closely geared to the particular decision making problem which comfort education planner in a given situation. Action research, the process by which planner attempt to study their problem scientifically in order to guide, correct, or evaluate their decision and action, is called action research. I gave you a simple example. Characteristics of action research: its immediate problem, local setting, classroom and school practices, very little influence. Right? Just मैंने आपको छोटी सी भी example दी थी. Aspect process of action research: self-dissatisfaction, identification of the problem, defining the problem, problem analysis, right? Action hypothesis, use of tools, action program, evaluation. ये छोटी सी रिसर्च होती है जिसका मकसद होता है जो इमीडिएट आपको प्रॉब्लम है ना, हाउ टू सीक द सॉल्यूशन ऑफ दैट इमीडिएट प्रॉब्लम। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो लॉन्ग टाइम तक जाती है, लंबे अरसे तक चलती है, concerning the nature and extent of change over the time and factor influencing change are in general obtained from first strategies. Simultaneous cross-sectional studies, trend studies, time series studies, inventory studies. लॉन्गिट्यूडनल को सिंपल समझ लें, जो प्रोलॉन्ग अरसे तक चलती है, जिसमें आप एक सेमेस्टर, 2, 3, 4 इन सेमेस्टर में वही आप ट्रीटमेंट देते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर उसका इफेक्ट चेक करते हैं कि एलएमएस को हमने 4-5 सेमेस्टर चलाया और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च उसमें देखा कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, 2 or more related cross-section studies are conducted at the same point in the time, with different age group being sampled by each cross-sectional studies, right? सिर्फ टाइप्स याद कर लो। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ। क्वेश्चन रिसर्च के बारे में कुछ बता दो। 10 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट। Mostly the term already used. Please guide. अच्छा देखिए, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है ना, ये आपको मिलेगा, पुरानी टर्म है, अब चेंज हो गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर इंडस्ट्री में होती है और ये इंडस्ट्री इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी ये रिसर्च करता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, उसका सोल्यूशन देता है, उससे डेवलपमेंट आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन बताता है। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है? जिसमें आप एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑन द डाटा। मैंने आपको शुरू में कहा रिसर्च की 2 बड़ी टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव,
और दोनों में एनालिसिस होता है, ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च, एनालिसिस करते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशंस की। अच्छा, शफकतुर रहमान, रिसर्च पेपर आप तब लिखेंगे जब आप रिसर्च करेंगे, ठीक है। रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और ये रिसर्च पेपर जब आप किसी जर्नल को भेजते हैं तो उनकी अपनी टीम होती है जो इसको एवेल्युएट करती है, पीयर एवेल्युएशन इसे कहते हैं, राइट। और रिसर्च पेपर जो है वो आपका पब्लिश भी होता है अगर अच्छी उसकी फाइंडिंग्स हों। इट डिपेंड अपॉन योर रिसर्च स्किल्स, योर कमांड ऑन इंग्लिश, your command on research analytical tools, instrument, how you use them, how you draw conclusions। ये तो रिसर्च पेपर एक रिसर्च बड़ी का एक छोटा सा कंपोनेंट जिसमें आप अपनी फाइंडिंग दुनिया को बताते हैं, और उसमें आप ये बताते हैं कि आपने ये रिसर्च क्यों की, इस रिसर्च के रिजल्ट्स क्या थे, और फ्यूचर में लोग को वो क्या करना चाहिए, ठीक है। ये रिसर्च पेपर भी होता है।